देहिनां देह संयोगा द्वन्द्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं मृते जन्म शापोनुग्रह एव च. Because the action Supreme Lord's external energy, the living entity, the condition, the contact with the material body, the dualities of happiness and distress, birth and death, curses and favors are natural byproducts of its contact in the material world. So dualities are part of this world. Yesham tu antagatam papam Jananam punya karmanam. Then te dvanda moha nirmuktam bhajante mam dhrida vrataha. What does it mean? The devotees of the Lord are free. When you are free from all the sinful activities and you do pious activities birth after birth, then only you can come to transcendental situation and you can engage in devotion service. Dvanda moha nirmukta means you are not in a material situation, you are in spiritual situation. In this word dvanda is there. Heat, cold. If you are free from that, you are not material, you are spiritual. Okay? Suppose somebody is not bothered, it is heat or cold. He is not in the material plane, he is in the spiritual plane. Great? So in this word, there are Sita, Atava, Bhata, Parishana, so many dualities are there. Sometimes we are praised, sometimes we are insulted. Now this is on the mental plane. So that means if you are not affected by body, heat and cold means you are not on the bodily plane. And mental, if somebody worships you, somebody insults you, it is same for you. You are free from the mental plane also. So these are all dvandas of this world. Praise, infamy, the list is given here. He is not affected. Happiness and distress, so-called happiness and distress. Prabhupada said there is only distress in this world, but anyway, happen. Birth and death. Somebody born, somebody died. We become very sad when somebody dies, and we become very happy when somebody takes birth. He is not bothered by that. Curses and favors. Somebody gives you shrapa, and somebody gives you a favor. Same. So this, if somebody is on this platform that he is free from this, that means he is on the spiritual platform. How to recognize? Bhagavad Gita also, when Arjuna asked Krishna in the chapter on 3 modes of material nature, he asks Krishna, how do I recognize a person with above the 3 modes? Krishna says, he should be free from any effect of duality. That means he has how do I detect a man who has transcended? This is the one. Okay. Some people are there, one day power is not there, AC is off. Forget power. If AC is off, they go crazy. They go crazy. Little one, AC is not working, they can't sleep only. So much in the dvanda. Actually, material body is like this. You should take due care, it becomes very healthy. You take more care, you become sick. Shri Radha Govinda ki. Just like example of sleeping. You should eat right, sleep right. If you sleep less, you fall sick. If you sleep more, then also you fall sick. Nowadays people are only on the bodily platform. They take care of the body. Too much care of the body makes the body also sick. Correct? You eat less, you fall sick. You eat more, then also you fall sick. Correct? So too much people are focused on the bodily care. Extra care is also not good. Extra care will eat more, you fall sick. Extra care, you sleep more, you fall sick. Due care is needed. Due. D-U-E. Due care. Anyway. So coming to this point, so Dvanda Moha Nirmukta, we should be totally free from the duality. I'll give you some example. Prabhupada has given example of Haridas Thakur. You can't even imagine that example. आप तो सोच भी नहीं सकते उसके बारे में. Haridas Thakur was chanting the Harinama, and the Muslim Qazi at that time said, or the king at that time said, let him be beaten to death in the marketplaces. And Haridas Thakur did not take any of us. इतना बड़ा तपस्या, आपको डंडे मार मार के कोई ख़त्म करना चाहता है और आप कोई अपराध नहीं ले रहे हो, आप डेफिनेटली शरीर में नहीं हो,
आपकी स्थिति बहुत आगे है। ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के बारे में बोलते थे तो ऐसा लगता था कि 5 मुंह से बोल रहे हैं, इतने खुश होके। हरेर गुणाक्षिप्त मति, भक्त के गुण ही ऐसे होते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आई विल टेक। एग्जाम्पल इज परीक्षित महाराज। Maharaj, no, there is a rishi called Shringa. He is a rishi. And Parikshit Maharaj is a king. He is a bhakta. He is a devotee. And the rishi is a mystic, yogi basically. He was doing tapasya, meditation on. Both are transcendentalists. Both of them are beyond the dualities. There are 3 kind of transcendentalists. ज्ञानी, योगी एंड भक्ता। कर्मी को ट्रांसलेट नहीं बोलते, इज बेसिकली मोर और लेस एन एनिमल, वो तो जानवर है। कर्मी मतलब मेहनत करता है, इंद्रिय भोग करता है, उसको शास्त्र में आध्यात्मिक नहीं बोला जाता, उसको जानवर बोला जाता है। आध्यात्मिक शुरू होता है ज्ञानी से, जिसको शरीर और आत्मा का फर्क समझ आ गया। योगी जो परमात्मा में मेडिटेट कर रहा है, और भक्ता जो भगवान का सेवा कर रहा है। करेक्ट, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। कौन ब्राह्मण में लगा है? ज्ञानी। कौन परमात्मा लगा है? योगी। और कौन भगवान के पीछे लगा है? भक्ता। ये दोनों 3 कैटेगरी, तीनों को स्पिरिचुअलिस्ट बोला जाता है, बिकॉज इन तीनों को भौतिक उथल पुथल से कोई मतलब ही नहीं है, शरीर का या मन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तीनों इस समाज में अद्भुत लगते हैं। नॉर्मल कर्मी लोगों को, जानवरों को ये लोग अद्भुत लगते हैं, समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। उनके इंद्रिय भोग में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तीनों भोग छोड़ चुके हैं। तो आपको सबको मालूम है, जब परीक्षित महाराज उनके में आए थे, उनका आश्रम था जंगल में। जब आश्रम में अंदर आए, उनको बहुत प्यास लगी थी, जैसे गर्मी आप लोगों को प्यास लगती है, कितना ही पानी पी लो और पीने का मन करता। तो वहाँ पहुँचे, उनको तो बहुत प्यास लगी थी, उन्होंने जंगल में, तो उन्होंने खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं। आश्रम, तो आश्रम के अंदर घुसे, वहाँ समीक ऋषि, समीक ऋषि, श्रृंगी तो उनका बेटा था। समीक ऋषि उधर ध्यान से भगवान पर ध्यान लगाए बैठे हैं, पूरे ध्यान में, इतने ध्यान में है कि ये परीक्षित महाराज चिल्लाते, अरे पानी दो थोड़ा। तो उनको लगता है आत्मवत मनते जगत, उनके उस समय स्थिति उनकी भगवान के प्रभाव से रजोगुण की आ जाती है। तो रजोगुण में हम जैसा सब आदमी अपने जैसे दिखते हैं, जैसे होता ना, ऐसा नॉर्थ इंडिया में नहीं देखा था। कल्चर है, क्या कल्चर है? मेट्रो में जैसे लोग घुसते हैं, अगर बुजुर्ग लोग घुसे तो आप उठ जाते हैं। बस में भी रहता ना कल्चर, कोई बुजुर्ग बस में आए तो इमीडिएटली लोग उठ के सीट दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग मैंने पता है क्या करते हैं, देखा, आंख बंद कर देते हैं। मैंने देखा ही नहीं कोई बुजुर्ग आए, बस में बैठे रहते हैं सीट पर। देखा आपने? दिल्ली में मेट्रो में नहीं देखा था, बहुत सारे यंगस्टर जनरली कोई बुजुर्ग आए उठ जाते हैं। अगर कोई बोलेगा यार तू क्या उठनी क्यों नहीं रहा, इसने आंख बंद कर देते, का बुजुर्ग घुस रहा, आंख बंद कर लिया, मैंने देखा ही नहीं, मैं तो सो रहा था। तो इसलिए परीक्षित महाराज सोचते हैं, इसलिए भी आंख बंद कर ली, बस राजा आ गया, अब कौन उठेगा, आंख बंद करके बैठ गया है, पानी भी नहीं देना चाहता बेशर्म। तो ऐसे करके उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आत्मवत मनते जगत, जैसा हम सोते हैं दूसरे को सोचते हैं। एक्चुअली परीक्षित महाराज तो बहुत बड़े भक्त है भगवान के, वो छोटी छोटी चीज़ों से विचलित नहीं हो सकते। उन्होंने तो ब्रह्मास्त्र तक को झेल लिया था, वो इस छोटी प्यास से विचलित नहीं, वो भगवान की इच्छा थी भागवत को आने के लिए, इसलिए ऐसा हुआ। तो देन उनको गुस्सा आ गया, नाटक करता है, आंख बंद करता है, पानी नहीं पिलाना चाहता। उनको गुस्सा आया तो क्या करूँ, उसको भी अब दिखाता हूँ, ऐसा तुम मेरा इज्जत करते हो, मैं तो उनको भी अच्छी इज्जत देता हूँ अभी। तो क्या इज्जत दी उन्होंने? एक मृत सांप को उनके गले में डाल दिया। ठीक है, जंगल में रहना आसान नहीं है, सांप होते हैं चारों तरफ, मृत या जीव दोनों को देख कर डर लगता है। इसलिए कलयुग में जहाँ भी हो वहीं रहो, नाम जप करो। ये सब तरीके जंगल जाऊँगा तब करूँगा नहीं हो सकता, ये सब सोचने की भी जरूरत नहीं है। So then what happens is that वो चला जाता है परीक्षित महाराज। तो कोई देखता है ये सब होते हुए, बिकॉज उनके खूटी के पास कोई बैठा है, सब देखता है राजा ने ऐसा किया। तो वो जाके भाग के उसके बच्चे को बताता है, श्रृंगी को, वो जो पानी में नहा रहा है, अरे तुम्हें पता है क्या हुआ?
तुम्हारे पिताजी को राजा ने एक मृत शरीर से तोहफा दिया है, गले में डाल दिया, ऐसा तुम्हारे पिताजी का राजा ने निरादर किया है। तो श्रृंगी तो पानी पी रहा होता है, बोलता क्या है, ऐसा बेशरम 12 साल का लड़का, ऐसा बेशरम राजा क्या सोचता है अपने आप को। मैं उसको श्राप देता हूँ 7 दिन में वो मरेगा एक सर्प हत्या से। आप गलत, सर्प के डसने से मरेगा 7 दिन में। उसका सांप भी खतरनाक सांप, त्वष्टा, हाँ, फ्लाइंग स्नेक आएगा, उसको मारेगा, श्राप भी दे दिया। तो उसके बाद वो जब कुटी में आया, देखा पिताजी तो बैठे हैं ध्यान से, सांप लगा हुआ उनके गले में, देख कर रोने लग गया। तो पिताजी ध्यान में लगे थे, और जोर के रोने लग गए, ये क्या हो गया, मेरे पिताजी को ऐसा निरादर कर दिया। यही होता है रासिक तामसिक लोगों का, छोटी मोटी चीज़ों पे अपने को पागल करते हैं। कुछ नहीं पता पिताजी को, पिताजी बैठे थे ध्यान से। तो इमीडिएटली आज फादर थोड़ा उठते हैं, बच्चे को चिल्लाने के देख के, क्या हुआ, क्या बेटा, देखते हैं यहाँ सांप है, निकाल के रख देते हैं, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पिताजी ऐसा सांप रख दिया, पता है मैंने उसको श्राप दे दिया, मर जाएगा 7 दिन में। किसको, राजा को। अरे मूर्ख, राजा तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी एक मैसेंजर को बता दे, राजा को बता दो 7 दिन में मृत्यु आ रही है। तो प्रभुपाद जी उस परपट पर नोट करते हैं, दोनों डुअलिटी के बाहर थे, दोनों विचलित नहीं हुए। भागवत में देखे दोनों को विचलित नहीं हुआ। परीक्षित महाराज को न्यूज़ मिलती है कि भाई तुम्हारा मृत्यु आ रही है 7 दिन में, ठीक है, वो राज्य छोड़ के गंगा के किनारे चले जाते हैं भागवत सुनने। दोनों विचलित नहीं हुए। ये आप नोट करिए कि समीक ऋषि भी बिल्कुल विचलित नहीं होते। अरे क्या कर दिया, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं, शांत, बेटा ऐसा नहीं करना था, राजा तो बहुत बड़ी चीज होती है, ये क्या कर दिया तुमने, ठीक, लेकिन विचलित नहीं होता। परीक्षित महाराज भी बहुत बड़ा दंड आया छोटे से काम के लिए, ठीक है। अब ब्राह्मण से तो लड़ने का हमारा कल्चर नहीं है, ठीक है, ब्राह्मण से श्राप आया, स्वीकार कर लेते हैं। दोनों का आप देख रहे हैं अद्भुत गुण। क्या गुण है, डुअलिटीज के बाहर है, इसलिए उनको छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, इसको इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या लिखा है भगवत गीता में, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेया, बहन पाइनो अनित्या ताम्स तितिक्षा से भारत। अर्जुन, हमको क्या करना है, कृष्ण जी बताते हैं क्या करना है, हमको टॉलरेट करना है। यही हमारा स्थिति है। क्योंकि जैसे खुजली, अगर खुजली मच रही है तो उसको अगर आप ज़्यादा करने लगोगे तो बीमार पड़ जाओगे और खून निकलेगा फिर, करेक्ट। उसको छोड़ दो ऐसे, नहीं तो फैल जाएगा पूरा, कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है। तो जितना भी इंद्रिय भोग की इच्छा है वो खाली खुजली के बराबर है, उसको छोड़ दो, चले जाएगी। मन में इंद्रिय भोग की इच्छा आती है, पता नहीं कितने करोड़ों जन्म में क्या क्या तरह के इंद्रिय भोग करें, मन में आ जाएगा, उसको छोड़ दो, उस पर खुजली नहीं करो। खुजली करना मतलब अच्छा आइडिया, करने का मजा नहीं, छोड़ दो, धीरे 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 चला जाएगा। आगम अपाइनो अनित्य, अनित्य हो तो अभी आया चला जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, थोड़ा टाइम बारिश आने वाली, 1 महीने में क्या है, ज़्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कब बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत गर्म, है ना, पूरे दिन यही बात बोलते रहते हैं, बहुत गर्म, एस टू हीट आगे, एस टू हीट आगे, नो प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट। तो 1 महीना वेट करो, बारिश आएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा। सो डिवोटी, क्योंकि ही इज फोकस ऑन हिज सर्विस टू कृष्ण। ये नहीं कि 2 मच्छर ने काट दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता आज, नहीं, इग्नोर्स दिस पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम मृत्यु लोक में आए तो ये सब तो मिलेगा ही आपको। भौतिक शरीर लिया है, क्यों हमको इनकन्वीनियंस हो रहा है, बिकॉज आध्यात्मिक वर्ल्ड में डुअलिटीज नहीं है, कोई डुअलिटीज नहीं होगा। अब यहां पे एक लोगों ने नाटक बनाया हुआ है, जब तक दर्द नहीं होगा सुख कैसे आनंद आएगा। मूर्ख, आध्यात्मिक जगत में कोई दर्द नहीं होता और आनंद ही आनंद होता है। ये तुम्हारी मेटेरियल हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस दोनों ही गड़बड़ है। द्वैते भद्रा भद्रा सकले समान, यही भद्रा यही, क्या श्लोक है, सब मनोधर्मा। ये भद्रा भद्रा ये सब आपके मन में है,
प्रभुपाद जी इसका बहुत टर्स कमेंट लेते हैं। जैसे रोड पर टट्टी पड़ी है कुत्ते की, अब उसका ब्राइट साइड ड्राई साइड दोनों बकवास है ना। आइए बोलो नहीं नहीं ये सूख गया ये अच्छा है, उससे ये टट्टी है ना, उसको तुम अच्छा बुरा क्या बोल रहे हो। तो इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, यह आपका मन का मानसिक है। कस्टमर आया मुस्कुरा रहा है बड़ा अच्छा है, खुद अच्छा नहीं है इस दुनिया में, सब बकवास है। इससे मेरे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये पहले भी मैंने बात किया, इसको दोबारा समझ लो। आजकल लोग हर जगह स्माइल 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 स्माइल, ये अगर करोड़ों लोग भी आपकी तरफ स्माइल करेंगे आपकी आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। उसके लिए आपको हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना पड़ेगा, है ना। आप समझे नहीं समझे, स्माइल स्माइल स्माइल। तो द्वय द्वंद्व, तो वैकुंठ धाम में जब भक्त, हम लोग सब वैकुंठ धाम के निवासी हैं, यहाँ बेवकूफ़ों की तरह भटक रहे हैं बेमतलब। जैसा वेद व्यास जी बोलते हैं, कोई मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर आने की, बेमतलब में घूम रहे हैं इधर और सफ़र कर रहे हैं। तो हमको द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, हाँ वी शुड अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसलिए यहाँ की डुअलिटी अच्छी नहीं लगती। यहाँ गर्म ठंडा होता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा ही नहीं, वेदर परफेक्ट होता है हमेशा, और बॉडी स्पिरिचुअल होती है, उसको ये सब आपके प्रॉब्लम ही नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी है, कृष्ण से रिश्ता भी इटर्नल है, उसका भी जाने का कोई डर नहीं है। यहाँ जन्म मृत्यु, वहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं, इसलिए इसको भव सागर बोलते हैं। क्यों भव, व्हाट हैपेंड, है ना। ओ दिस एक्सीडेंट हैपेंड, कौन लोग न्यूज़पेपर पकड़ते क्या हो, दैट पर्सन डाइड, वहाँ ऐसी कोई न्यूज़ है ही नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे, यहाँ अगर न्यूज़ रिपोर्टर खाली आएगा, पूरा प्लेट खाली आएगी, ना कोई मरता है ना कोई जीता है, ना बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ना दानव है उधर। दानव तो जब कृष्ण की भौम लीला थी उसमें थे, वैकुंठ धाम में दानव नहीं होते, दानव भी नहीं। यहाँ का तो न्यूज़पेपर खाली आएगा। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नहीं, अगर न्यूज़ रिपोर्टर इधर आएगा इधर भी खाली जाएगा। ये सब का न्यूज़ ही नहीं है, उसके लिए न्यूज़ क्या है। कृष्ण की लीला यहाँ है ही नहीं, कृष्ण की लीला तो वैकुंठ धाम में होती है, वहाँ तो लीला से तो यहाँ कुछ कनेक्शन है ही नहीं लोगों का, सब इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, वो भी खाली स्लेट लगे जाएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी न्यूज़ आती है, क्या न्यूज़ आती है, नव रसा। पता है कृष्णा ने क्या बोला मदर यशोदा का, वो सुनने में आनंद है, खुशी है। ये सुनने में क्या है, जैसे कृष्ण जी वृंदावन में आए थे, हर दिन उनकी लीला का विवरण होता रहता था, ठीक है। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, अगर आपको कृष्ण की लीला में एंटर होना है तो द्वंद्व से विमुक्त होना पड़ेगा। और ये लक्षण है एडवांस भक्त के। क्या एडवांस भक्त के लक्षण, इसको इस दुनिया के द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके उसको भगवत सेवा मिलेगी। अगर मन द्वंद्व से डिस्टर्ब हो जाता है तो भगवान का नाम जप नहीं कर पाएगा। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तने सदा हरि, तभी जाके हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।